Hello everyone, this is Renu and welcome back to Qtrix. Today in this video we are going to solve questions of exercise 11b and this is the chapter number 11 of R.S. Agarwal. As in this exercise there are total 30 questions and today in this video we are going to solve only 10 questions. So our first to 6 questions are related to by using the formula. We have to use the formula to find out the amount as well as we have to find out the compound interest. So these 6 questions, in these 6 questions we have to find out the amount as well as compound interest. So starting with the first one, in first one we have given P is equal to 6,000, time is equal to 2 year and rate is equal to 9% per annum compounded annually. Rate is given per annum compounded annually, okay. So we have P is equal to 6,000, N is equal to 2 year and R is equal to 9%. So this is the formula for the amount. So A is equal to P bracket 1 plus R upon 100 power N. So putting the values in the formula we get 6,000 plus 1 plus R that is 9 upon 100 and N is equal to 2. So N की वैल्यू यहाँ पे 2 डाल देंगे. Then solving this bracket यहाँ पे LCM आ जाएगा हमारा 100 plus 9 upon 100 is equal to, this will equal to 109 by 100. So इसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया 109 by 100 एंड इसकी पावर 2. सो आ गया 6,000 इंटू 109 by 100 की पावर 2. So solving this, इसकी power 2 means that means 109 upon 100 into 109 upon 100. तो इन दोनों को इसका स्क्वायर निकाला हमने तो हमारे पास आ गया ये means 11,881 upon 10,000 into 6,000. So इसके ज़ीरो इससे कैंसिल आउट हो गए, ये 3 ज़ीरोस इस वाले से 3 ज़ीरोस से इसके, देन ये आ गया, हम इसे सॉल्व किया this portion. By solving this portion we get 7,128.60 and this is the amount. ये क्या है हमारा amount है. So अब amount तो हमारा आ गया, अब CI कैसे आएगा? CI आएगा amount minus principal करके. तो amount क्या आया था 7,128.60 and the principal is given 6,000. So इसको माइनस कर देंगे 6,000 से. द आंसर इज CI इज इक्वल टू 1,128.60. सो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, अमाउंट एंड CI चाहिए था, तो हमारे पास दोनों है. द अमाउंट इज 7,128.60 एंड CI इज इक्वल टू 1,128.60. एंड इन दिस नाउ इज द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, we have given the P is 10,000 and year is 2 year, time is 2 year and rate is 11% per annum compounded annually. This is also given annually. So principal is equal to 10,000 and rate is equal to 11% per annum and period is equal to 2 year. So this is the formula for amount, putting the values in the formula. So 10,000 P की जगह पे प्लस 1 प्लस R इज इक्वल टू 11%, तो 11 by 100 और N की जगह पे आ गया 2. सो यहाँ पे आ गया हमारा 10,000, इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके आ गया हमारा 100 प्लस 11 अपॉन 100. दिस विल बी इक्वल टू 111 अपॉन 100. इसकी पावर आ जाएगी 2. ठीक है, तो ये 2 है तो 2 टाइम्स हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के साथ 10,000. सो हमने यहाँ पे P की वैल्यू डाली थी ये, और इसको सॉल्व करके हमारे पास इतना पार्ट आ गया. नाउ सॉल्विंग दिस पार्ट, इसे सॉल्व करके आ गया मेरे पास
11 इंटू 10,000. सो इसका स्क्वायर आ गया 1.2321 इंटू 10,000. सो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया यहाँ पे टोटल हमारे पास 12,321. सो दिस इज द अमाउंट. ये आया हमारा अमाउंट. अब हमें क्या निकालना है? सी आई निकालना है. सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी. सो ए इज 12,321 माइनस 10,000. सो दिस इज इक्वल टू सी आई की वैल्यू आ गई 2,321. Now the third one is R rupees is equal to यहाँ पे 31,250. Time is equal to 3 year. Rate is equal to 8% per annum compounded annually. So principal यहाँ पे क्या है? 31,250. Rate is 8% and time is 3 year. And this is the formula for amount. So putting the values, we get 31,250 1 प्लस ये आ जाएगा 8/100 और ये n इज इक्वल टू 3 है तो ये पावर 3. इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 100 एलसीएम. तो 100 प्लस 8 दैट इज 108/100 की पावर 3 इंटू 31,250. सो 31,250 इंटू ये कट हो गया हमारा, देखिएगा 5 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 5 जा 10 और 0. So 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10. This is equal to 27/25 की पावर 3. So ये 3 times आ जाएगा हमारा. So 31,250 into 27/25 into 27/25 into 27/25. So इस पूरे को सॉल्व करके we get the amount that is 39,366. A is equal to यहाँ पे आ गया 39,366. And compound interest क्या आ जाएगा? A minus P that is 39,366 minus 31,250. जिसे सॉल्व करके आ गया हमारा 8,116. Okay. Now the fourth one is रुपीज 10,240 और टाइम गिवन है 3 years और यहाँ पे रेट गिवन है 12 whole 1/2% per annum compounded annually. दिस इज ऑल्सो गिवन एनुअली. सो रेट इज यहाँ पे क्या गिवन है हमें? 12 whole 1/2. दैट मीन्स ये आ गया हमारे पास 25/2. सो अब वैल्यूज पुट करते हैं. दिस इज द फॉर्मूला. वैल्यूज पुट करते हैं इस पे तो ये आ गया A is equal to 10,240 1 plus 25/2 that is 25 into 2 25/2 into 100 की पावर 3. इसको सॉल्व करेंगे. ये आ गया 25 1 जा 25 and 25 8 जा 200. सो आ गया 1/8 1 plus 1/8. अब इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा 8. तो यहाँ आ गया 8 plus 1 8 plus 1 दैट इज 8 plus 1 क्या होता है? 9. सो यह हमारे पास आ गया 9/8. ओके. यह आ गया हमारे पास 10,240 इंटू 9/8 की पावर 3. सो 9/8 की पावर 3 मीन्स इसका क्यूब आ गया 729/512 into 10,240. By solving this, we get 14,580. और ये जो हमारा 14,580 है, this is the amount. अब CI find out करना है. CI is equal to amount minus principal. So amount is 14,580 minus that principal 10,240. This is equal to 4,340. यहाँ से हमारी CI की वैल्यू आ गई 4,320 and hence the amount is this and CI is this. Now the fifth one. In fifth we have rupees 62,500 for 2 years 6 months. Okay. Now the time is given in that fraction. We have already learned this case in previous video. This is the case number 3 where time is given in fraction. तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं हमने पहले पढ़ लिया है. तो
तो लेट अस सी कि ये कैसे सॉल्व होगा. टाइम इज गिवन 2 years 6 months at rate is 12% per annum compounded annually. So P is here, principal is here 62,500, rate is here 12%, time is here 2 years 6 months. That means 2 साल तो पूरे. 6 month means 6 upon 100. So this is equal to 1 by 2. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. So ये हो गया 2 month complete and half year. Sorry, 2 year complete and half year. So value, putting the values in the formula, ये आ गया 62,500. और हमने क्या पढ़ा था जब फॉर्मूला पढ़ा था फॉर द फ्रैक्शन, जो कंप्लीट टाइम है उसके लिए लाइक दिस 1 प्लस जो रेट है दैट इज 12/100, 2 आ जाएगी पावर, एंड जो फ्रैक्शन वाला टाइम बचा हमारे पास दैट इज इक्वल टू 1/2, वो रेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 1 प्लस ये आ गया हमारा 12 इंटू 1/100 इंटू 2. सो ये ऐसे सॉल्व होगा. तो ये आ गया 62,500 इंटू दिस फ्रैक्शन, दिस पार्ट गेट्स सॉल्व. सो ये आ गया 100 एज एलसीएम प्लस 12/100. This is equal to 102/100. ओके, सो ये आ गया 112/100 की पावर 2. और ये वाला पार्ट आ गया हमारा, दिस विल कम लाइक दिस, मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 100 इंटू 2 200 और ऊपर पे 12 प्लस 1. सो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 200, यहाँ पे आ गया 200 प्लस 12. तो दिस इज इक्वल टू 212/200. So 2 and 2 0 6 2 6 12, 2 and 2 0 0, 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10 and 0. So 53/50. इसको सॉल्व किया 53/50 को तो आ गया 1.06. और 1 ये इसको हमने चेंज कर दिया, से डिवाइड कर दिया 100 से, तो दैट इज इक्वल टू 1.12 की पावर 2. सो 62,500 इंटू इसकी पावर 2 मीन्स 1.2544 इंटू 1.06. तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करके वी गेट आंसर एज 83,104 एंड दिस इज द अमाउंट. सो सी आई क्या हो जाएगा, A minus P. So A minus P means 83,104 minus 62,500. तो ये आ गया मेरे पास वैल्यू दैट इज इक्वल टू 20,604. So CI is equal to 20,604 and the amount is equal to 83,104. Now coming to the question number 6. Here P is equal to 9,000. Time is equal to 2 year 4 month. Here also time is given in fraction. 2 years तो complete है and 4 month means 4/12. So 4/12 is equal to 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 means 1/3. Okay, 2 whole 1/3. And 10% per annum compounded annually, or interest is given annually. So we have P is equal to 9,000, N is equal to 2 into 4/12, that is 2 whole 1/3, जो अभी हमने आपको निकाल के दिखाया. 4 month of 1 year is equal to 1/3. Okay, so means 2 year 1/3, 2 whole 1/3, or rate is equal to 10%. So this is the formula. Putting the values in the formula, 9,000 1 plus 10/100 और की पावर 2. ठीक है, जो कंप्लीट ईयर होता है उसको ऐसे लिख कर देते हैं, फिर इंटू जो हमारे पास फ्रैक्शन वाला ईयर बचा दैट इज इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 10/100. ठीक है, फ्रैक्शन वाला टाइम इंटू हो जाता है रेट के साथ.
सो 9000 इंटू 1 प्लस 1/10 की पावर 2 इंटू ये नीचे आ जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस 1/10, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 3 इंटू 100 दैट इज 10/300. सो दिस जीरो गेट कैंसिल बाय दिस जीरो, तो आ गया 1/30. अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे एलसीएम होगा 10 प्लस 1 अपॉन 10. सो दिस विल बी इक्वल टू 11/10. ओके, ये हो गया 11/10 की पावर 2. और यहाँ पे हो गया एलसीएम आ जाएगा इस ब्रैकेट में 30. सो दिस विल बी 30 प्लस 1/30 and this will be equal to 31/30. ओके, सो इसको अब सॉल्व करते हैं आगे. इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया 9000, इसका स्क्वायर आ गया 121 अपॉन 100 इंटू 31/30. सो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया. 3 1 जो 3, 3 3 जो 9. सो 3 इंटू 31 इंटू 121, इन सबको इंटू करते हैं तो हमारे पास आ गया 11,251. So the A is equal to 11,253. A तो ये आ गया. अब है CI निकालना. CI कैसे निकलता है? A माइनस P करने पे. So A is 11,253 minus principal is 9,000. So CI is equal to 2,253. Hence the amount is 11,253 and compound interest is 2,253. Now coming to the question number 7. So in question number 7 we have find the amount of rupees 8,000 for 2 years compounded annually and die rate being 9% per annum during the first year, 10% per annum during the second year is, पहले ईयर में 9% है and second year is 10%. See, this case also we have learned in the previous video. इसमें क्या होता है कि जो हमारा रेट होता है वो डिफरेंट ईयर के लिए डिफरेंट होता है. ओके, प्रिंसिपल एंड टाइम इज सेम बट द रेट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर. सो हमें क्या करना होता है, हमें डिफरेंट ईयर के अकॉर्डिंग डिफरेंट रेट फाइंड आउट करना होता है. So here the principal is 8,000, time is 2 year and the rate for the first year is 9% and the rate for the second year is 10%. So we have the formula like this. इसमें amount का formula क्या होता है? P bracket 1 plus R1 upon 100 और time 1 year given है तो 1 हो गया. 1 plus R2 upon 100, time here also 1 year given है तो 1 year हो गया. So putting the values in the formula we get 8,000 bracket 1 plus 9 upon 100. इसमें रेट क्या गिवन है फर्स्ट में 9%, तो 9 upon 100 हो गया और टाइम फॉर 1 ईयर गिवन है तो 1 आ गया. ओके, सेकेंड में भी ऐसी 1 plus R2 is given 10%, so 10 upon 100 and time is given 1, तो यहाँ पे भी 1 आ गया. So इसे सॉल्व कर लेते हैं. LCM will be 100, so 100 plus क्या आ जाएगा 9 upon 100. This is equal to 109/100. Okay, so ये आ गया 109/100 and second bracket को solve कर लेते हैं. This is also 100 as LCM plus 10 upon 100. This is will be equal to 110/100. So ये इससे cancel out हो गया तो यहाँ पे ये बचा. So इस पूरे को solve करके by solving this part we get amount as 9,592. हमारे पास amount आ गया 9,592 and इस question में सिर्फ हमें क्या find out करना था, find the amount. Only amount we have to find out, that's all. हमें CI नहीं find out करना है, इसलिए हम इसे इतना ही solve करेंगे. जब हमसे अगर CI पूछा जाता when we have asked CI तो हम क्या करते,
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते, बट हमें सिर्फ अमाउंट पूछा है तो हम इसे इतना ही सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज़ रिमेंबर दैट अगर रेट डिफरेंट ईयर के लिए डिफरेंट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। सो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आनंद ऑब्टेन अ लोन ऑफ रुपीज, आनंद ने 1,25,000 का लोन लिया फ्रॉम द इलाहाबाद बैंक फॉर बाइंग कंप्यूटर। सो उसने लोन लिया इलाहाबाद बैंक से 1,25,000 का। द बैंक चार्जेस, बैंक ने क्या चार्ज किया, कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, ठीक है, 8% का पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट उसने चार्ज किया। व्हाट विल ही हैव टू पे आफ्टर 3 ईयर, हमें बताना है कि 3 साल बाद वो कितना उसे पे करना पड़ेगा, ये हमें बताना है। सो प्रिंसिपल इज गिवन 1,25,000, रेट इज 8% पर एनम एंड टाइम इज फॉर 3 ईयर। सो इसमें जनरल क्वेश्चन है तो जनरल फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज P bracket 1 plus R by 100 की power n. So putting the values in the formula, we get 1,25,000 bracket 1 plus R, that R is, rate is 8%, that is 8 upon 100 की power 3, time is 3 year. So value put करने पे, इसको solve करने पे आ गया 100 will be the LCM, 100 LCM आया, so it will be 100 plus 8 upon 100, this will be equal to 108 upon 100. ओके, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, दिस विल बी 100. ओके, सो हमारे पास क्या आया, 108, वी हैव 108 अपॉन 100. सो इसे सॉल्व करेंगे, 2 5 2 जो 10 and 5 4 जो 8, 5 2 जो 10 and 0, 2 2 जो 4, 2 7 जो 14, 2 2 जो 4, sorry, yes, and 2 5 जो 10. So this is equal to 27 by 25. Okay, and इसकी power 3. So 1,25,000 into 27 upon 25 3 times आ जाएगा. So 27 by 25 into 27 by 25 into 27 by 25. इस पूरे को सॉल्व करेंगे हम तो we get 1,57,464. जो ये हमारा आया है, this is the amount. And what we have asked, हमें सिर्फ क्या पूछा था, अमाउंट ही पूछा गया था, तो सिर्फ हम इसमें अमाउंट निकालेंगे एंड अमाउंट इज इक्वल टू आनंद that 1,57,464. So ये जो amount है, this is therefore the Anand has to pay 1,57,464 after 3 years to clear the debit. 3 साल बाद अपना जो डेबिट है उसको क्लियर करने के लिए कितने परसेंट का इंटरेस्ट के साथ, 8% के इंटरेस्ट के साथ उसको 1,57,464 रुपीज़ वापस करने has to pay. Now the question number 9th. 3 years ago, 3 साल पहले, Biru purchased a buffalo from Sujit for rupees 11,000. Okay, 3 साल पहले बीरू ने परचेज किया buffalo from Surjit 11,000 रुपीज़ का. What payment will discharge his debit now? कितना उसको पेमेंट करना पड़ेगा? The rate of interest is 10% per annum, compounded annually. Rate of percent है that is 10%. So the price is 11,000. Rate of interest is 10% per annum, and the period, that is time, is equal to 3 years. This is the formula for the amount. Amount के लिए ये formula होता है, that is P bracket 1 plus R upon 100 की power n. So P की value है यहाँ पे 11,000. Putting the values, so 11,000 plus 1, R क्या है 10%, तो 10 upon 100 और n is equal to 3 years, so n is equal to 3 आ गया.
सो 11,000 इसको सॉल्व करेंगे, 100 विल बी द एलसीएम प्लस 10 upon 100. So this will be equal to 110 upon 100. This get cancelled by this. So 100 by 10 आ गया. So 100 by 10 की कितनी पावर होगी? 3 पावर होगी. So ये आ गया 11,000 into 11 upon 10 into 11 upon 10 into 11 upon 10. So ये जो 3 zeros हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इन 3 zeros से. So 11 की पावर अब क्या हो गया? 4 हो गया. So यहाँ पे हमारा 11 आ गया 4 टाइम्स. ठीक है, ये जीरो कैंसिल आउट हो गए इन जीरो से, तो 11 4 टाइम्स मीन्स 11 की पावर 4. सो दिस इज इक्वल टू 14,641. यहाँ पे हमारा क्या आ गया? अमाउंट आ गया क्या? 14,641. और therefore the Biru has to pay 14,641 to clear the debit. ठीक है, बीरू को 3 साल बाद 10% के इंटरेस्ट के साथ जो 11,000 का उसने बेफेलो खरीदा था उसे उसके लिए देना पड़ रहा है 14,641. Now the last question of this exercise is the question number 10. So the question is, Sublakshmi took a loan of rupees 18,000 from Surya Finances to purchase a TV set. Okay, so लक्ष्मी ने लोन लिया 18,000 का सूर्या फाइनेंस से एक टीवी खरीदने के लिए. इफ द कंपनी चार्जेस कंपाउंड इंटरेस्ट 12% पर एनम, कंपनी 12% का इंटरेस्ट ले रही है पर एनम. फर्स्ट ईयर में वो ले रही है 12% 12/2% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर पे 12% का ले रही है, सेकेंड ईयर पे वो ले रही है 12/1/2% का. सो हाउ मच विल शी हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर, तो 2 साल बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा, दिस वी हैव टू फाइंड आउट. सो वी हैव गिवन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 18,000, एन इज इक्वल टू दैट इज टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर, और R1 गिवन है 12%, मतलब पहला ईयर पे जो रेट गिवन है वो 12% है, एंड सेकेंड ईयर के लिए जो रेट गिवन है वो है 12/1/2%. सो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा कि डिफरेंट रेट के लिए डिफरेंट फॉर्मूला यूज होगा. सो हेयर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 18,000, so पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. 18,000 आ गया प्रिंसिपल, 1 प्लस रेट आ गया, पहला रेट है 12% का, सो 12/100, एंड टाइम इज 1 ईयर, सो एन हो गया 1. सेकेंड रेट इज गिवन 12/1/2, दैट इज 25/2 आ जाएगा ये. सो 25/2 मीन्स 1 प्लस rate is equal to 25/2, तो 25/2 means 25/2 into 100, तो ये आ गया 25/200. सो 18,000 प्रिंसिपल, और इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, सो ये आ गया 3/25. And this also get cancelled, 25 1 जा 25 and 25 8 जा 200, तो ये आ गया 1/8. अब इन दो ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे. फर्स्टली दिस वन, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 25, सो इट विल बी 25 प्लस 3 अपॉन 25. दिस विल बी इक्वल टू 28/25. ओके, सो ये आ गया 28/25, एंड टाइम 1 था तो पावर क्या हो गई? 1 हो गई इसकी. 1 ईयर गिवन था. और ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 8 एलसीएम आएगा, 8 प्लस 1 अपॉन 8, दिस विल बी इक्वल टू 9/8. सो ये आ गया हमारा 9/8. अब हम क्या कर देंगे, 9/8 ये आया, 28/25 ये आया इंटू 18,000. सो इसको सॉल्व करके we get the answer that 22,680. जो ये 22,680 आया है, दिस इज इक्वल टू ए. ए मीन्स अमाउंट, और हमें क्या फाइंड आउट करना था? वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ओनली. हमें बताना था कि हाउ मच विल शी हैव टू पे आफ्टर 2 years. सो हेंस शी हैव टू पे रुपीज 22,680. ठीक है,
हमें कितना रुपीस जमा करना है, उसे कितना रुपीस पे करना है, 22,680. Okay, so these are the 10 questions of exercise 11b. Hope you understand these questions. For more such videos, please visit to our website, that is www.qtricks.in, and you can visit to our in YouTube Qtricks Foundation, where you found different topics related videos by different teachers. So please like, share and subscribe to Qtricks. Thank you. Have a wonderful day.